اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیاری طلبہ، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کلمے کی قسمیں۔ اس کو ہم نے پہلے اس کی کچھ قسمیں پڑھی تھی، لیکن آج یہاں پہ میں اس کی جو قسمیں ہیں وہ میں نے سب ایک ساتھ اٹھائے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ مہربانی کر کے آپ یہاں پر اپنا جو دھیان ہے دھیان جمائے، تاکہ آپ کو یہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ سب سے پہلا جو ہمارا موضوع تھا، جو ہم نے سٹارٹ کیا جب ہم گرامر سٹارٹ کر رہے تھے، تو اس میں ہم نے پہلے جو پڑھا تھا اس میں ہم نے لفظ کو پڑھا تھا۔ تو ہم نے کہا تھا اس میں لفظ میں آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ہم نے کہا جو بھی ہم منہ سے بات کہتے ہیں، چاہے وہ با معنی ہو یا بے معنی، اس کو ہم لفظ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے کہا یہ جو لفظ ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ اس میں سے پہلا جو ہے وہ ہے کلمہ اور دوسرا جو ہے وہ ہے محمل۔ تو وہاں پہ ہم نے کیا کیا، کلمہ ہم نے جب دیکھا تو کلمہ ہمیں با معنی نظر آیا، تو ہم نے کہا کہ کلمہ جو ہے یہ با معنی لفظ ہے، یہ با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ پھر جب ہم نے محمل پر نظر دوڑائی تو وہاں پہ ہمیں یہ پتہ چلا جو بے معنی لفظ ہے اس کو محمل کہتے ہیں، یعنی فضول جس کا کوئی معنی نہ ہو۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ جب فضول ہے تو اس کو آگے کیا کرنا ہے، اب اس کو یہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کلمہ کو ہم نے پھر اٹھایا۔ تو جب ہم نے کلمہ اٹھایا تو کلمہ کو جب ہم نے دیکھا تو ہم نے کلمہ کی پہلے 3 قسمیں پڑھی تھی۔ اس میں ہم نے پڑھا تھا اسم، فعل اور حرف، اور ان کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا جو اسم ہے، کسی بھی نام کو اسم کہتے ہیں، یہ میں نے آپ کو بالکل نٹشل میں بتایا تھا۔ اسم، اس کو ہم انگلش میں ناؤن بھی کہتے ہیں، آپ اس کو اس طرح بھی یاد رکھ سکتے ہیں۔ تو ہم نے کہا تھا کسی بھی نام کو، پھر میں نے کچھ مثالیں دی، میں نے کہا گھر، اقبال، پتھر، زمین وغیرہ، یہ سب جو ہے درخت، آسمان، یہ سب میں نے بتایا تھا۔ تو یہ سب نام ہے، مثال کے طور کتاب ہے، قلم ہے، بورڈ ہے، میز ہے، کاپی ہے، یہ سب کیا ہے، یہ نام ہے، تو یہ اسم میں آتے ہیں۔ یعنی میں نے کہا تھا نٹشل میں وہاں کسی بھی نام کو اسم کہتے ہیں۔ دوسری بات یہاں پہ جو فعل ہے، فعل جس کو ہم انگلش میں ورب کہتے ہیں، اس کو ہم انگلش میں کیا کہتے ہیں، ورب کہتے ہیں۔ تو فعل کے بارے میں بھی میں نے اس طرح سے کہا کسی بھی کام کو ہم فعل کہتے ہیں۔ کسی بھی کام، چاہے کھانا ہو، پینا ہو، دوڑنا ہو، چلنا ہو، لکھنا ہو، پڑھنا ہو، یہ سب کام میں آتے ہیں۔ کاٹنا ہو، ہنسنا ہو، نہانا ہو، سونا ہو، یہ سب کام میں آتے ہیں۔ تو یہ اس کو میں نے آپ کو بتایا تھا نٹشل میں، کسی بھی کام کو ہم فعل کہتے ہیں۔ پھر یہاں پہ حرف آیا۔ حرف کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو حرف ہے یہ ہمیں 2 جملوں کو ملانے میں مدد دیتا ہے، یا 2 لفظوں کو آپس میں ملانے میں مدد دیتا ہے۔ پھر میں نے کچھ مثالیں دی جس پر میں نے لکھا تھا میں، کو، کی، کے، یہ سب جو ہے یہ حرف ہے، اور یہ ہمیں جملے کو، جملہ ہو یا لفظ ہو، ان کو آپس میں ملانے میں مدد دیتے ہیں، ان کو ہم حرف کہتے ہیں۔ تو یہ بھی ہم نے پڑھا تھا۔ آج جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے ضمیر اور صفت اور متعلق فعل۔ چونکہ اگر ہم اس کو انگلش میں دیکھیں گے، ضمیر جو ہے، ضمیر ہم اس کو کہتے ہیں جو ہم اسم کی جگہ استعمال کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہاں پہ میں کہوں گا مثال کے طور پر درخت، مثال کے طور پر اس میں یہ ایک درخت ہے، مثال یہ سوچ اخ درخت، ٹھیک، وہ
लड़का है, मिसाल उस लड़की ने खाना नहीं खाया। ये कुछ मिसालें जो मैंने यहाँ पे लिखी है, ये लिखा है, वो लिखा है, उस लिखा है, ये सब जो है जो हम इसम की जगह इस्तेमाल करें। मेरा नाम इकबाल है, मैं इकबाल एक अच्छा लड़का है। इकबाल रोज़ स्कूल जाता है, वो स्कूल में बहुत मेहनत करता है। इकबाल की जगह जो मैंने इस्तेमाल किया वो यानी जो हम इसम की जगह इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़, उसको हम इसमें ज़मीर कहते हैं। तो इस तरह से ये जो ज़मीर है इसको हम इसमें ज़मीर कहते हैं, यानी जो हम इसम की जगह इस्तेमाल करते हैं उसको हम इसमें ज़मीर कहते हैं। तो मेरे ख्याल में बिल्कुल आसानी से मैं कह रहा हूँ, इसमें ज़मीर जो है, इसको ज़मीर जो है, ज़मीर ये वो लफ्ज़ है जो हम इसम की जगह इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह मैंने कुछ मिसालें यहाँ पे बताई, वो उनके, उसका, ये सब जो है, ये सब अल्फाज जो है ये इसमें ज़मीर में आते हैं। तो मेरे ख्याल में आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया कि इसमें ज़मीर किसको कहते हैं। अब और एक बात यहाँ पे है सिफत। अब सिफत की बात है यहाँ पे, सिफत क्या है? अब हमें सिफत को सीखना है। सिफत, इसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? इसमें ये जो ज़मीर है इसको हम कहते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन, ये हुर्फ जो है इसको हम वर्ड कहते हैं, ठीक? इसको हम प्रोनाउन कहते हैं इंग्लिश में, किसको? ज़मीर को। अब जो सिफत है, सिफत को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? सिफत को हम एडजेक्टिव कहते हैं, एडजेक्टिव, इसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, ठीक। एडजेक्टिव किसको कहते हैं? सिफत को कहते हैं, सिफत को कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। मैं लिखूंगा यहाँ पे इस तरह से, रशीद एक अच्छा लड़का है, ठीक। यहाँ लिखूंगा मैं बशीर एक गरीब लड़का है। अच्छा, वो फूल खूबसूरत है, वो लड़की बदसूरत है। मिसाल, कुछ मिसालें मैंने ये लिखी है। हमें सिफत समझना है कि सिफत किसको कहते हैं, जिसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। यानी यहाँ पे आप आसानी से मैं ये कहूँगा, मेरा नाम इकबाल है, मैं हर रोज़ सुबह सवेरे उठता हूँ, ये मेरी सिफत है। यानी मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, ये मेरी सिफत है। इसी तरह से यहाँ पे मेरा नाम इकबाल है, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, ये अच्छा होना मेरे लिए सिफत है। मेरा नाम इकबाल है, मैं एक टीचर हूँ, मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, ये एक सिफत है। यानी सिफत हमें ये क्वालिटी बताता है कि किस किस्म का पर्सन है, किस किस्म का इंसान है, किस किस्म की चीज़ है, तो वो हमें ये बताता है। यहाँ पे मैंने रशीद एक अच्छा लड़का है, रशीद तो लड़का है लेकिन कैसा लड़का है? रशीद अच्छा लड़का है, तो ये अच्छा जो है ये इसकी सिफत है।
अच्छा इसकी सिफत, यहाँ रशीद तेज दौड़ता है। रशीद एक लड़का है जो तेज दौड़ता है, तेज दौड़ना इसकी सिफत है। ठीक, मैं सिफत यहाँ पे बयान कर रहा हूँ। तो इसी तरह से यहाँ पे फूल खूबसूरत है, फूल तो है लेकिन खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। तो ये खूबसूरत इसके लिए क्या बन गया, सिफत बन गया। वो लड़की बदसूरत, यानी बदसूरत क्या है, ये इसकी सिफत है। लंबा सिफत है, छोटा सिफत है, मोटा सिफत है, बड़ा सिफत है, काला सिफत है, गोरा सिफत है। ये सब अल्फाज जो है ये सिफत में आते हैं। तो इस तरह से मेरे ख्याल में आपको अब ये भी समझ में आ गया कि सिफत हम किसको कहते हैं। इसके बाद मुतल्लिक़ फ़ैल। मुतल्लिक़ फ़ैल यहाँ पे हमने एडजेक्टिव इसको इंग्लिश में बताया था। यहाँ पे जो मुतल्लिक़ फ़ैल है इसको हम एडवर्ब कहते हैं, एडवर्ब। इंशाल्लाह किसी टाइम में आपको इंग्लिश ग्रामर में भी ये चीज़ें सिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला। फिलहाल मैं यहाँ पे उर्दू इस वक्त मैंने उठाया है तो मैं उर्दू की बात कर रहा हूँ। तो लेकिन साथ साथ ये इसलिए कह रहा हूँ कि ताकि आपके जहन में ये भी रहे। मुतल्लिक़ फ़ैल इसको हम एडवर्ब कहते हैं। और मुतल्लिक़ फ़ैल जो है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं मिसाल के तौर पर खाना खाता हूँ। ठीक, मैं खाना खाता हूँ। आपको पहले मैंने बताया था फेल के बारे में हमने पढ़ा है, वर्ब के बारे में हमने पढ़ा है। किसी भी काम को हम फेल कहते हैं। काम हम देखने को भी कहते हैं, काम हम चलने को भी कहते हैं, काम हम खाने को भी कहते हैं, काम हम पीने को भी कहते हैं, काम हम पढ़ने को भी कहते हैं, काम हम पढ़ाने को भी कहते हैं। तो ये सब जो है ये काम में आते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं खाना खाता हूँ, मैं के बारे में आपको पता चला अब ये ज़मीर है क्योंकि इसम की जगह इस्तेमाल हुआ। इकबाल की जगह मैंने मैं को इस्तेमाल किया तो इसमें ज़मीर है। अब खाना जो है खाना इसम है, खाता जो है ये है फेल। तो अब हमें क्या सीखना है, हमें पढ़ना है मुतल्लिक़ फ़ेल। तो मैं खाना खाता हूँ। अब इसको मैं ऐड मतलब वो यहाँ पे ये मतलब मुतल्लिक़ फ़ेल जो है वो जुमला लिखना चाहता हूँ। इकबाल तेजी से खाना खाता है। यहाँ पे अब आपको समझ में आ जाएगा जो हम मुतल्लिक़ फ़ेल जो है वो क्या है। यानी मैंने यहाँ लिखा इकबाल तेजी से खाना, एक तो मैं खाना खाता हूँ ये वो आ गया, लेकिन तेजी से, ये जो तेजी से यही मुतल्लिक़ फ़ेल है। यानी मैं तो खाना खाता हूँ लेकिन किस तरह खाता हूँ, ये हमें काम करने की मतलब जो है पोजीशन बताता है, काम करने का मतलब सलीका बताता है किस तरह हो रहा है। मैं खाना खा रहा हूँ, हंसते हंसते मैं खाना खा रहा हूँ, ये जो हंसते हंसते ये मुतल्लिक़ फ़ेल है। मैं दौड़ रहा हूँ, मैं तेज़ी से दौड़ रहा हूँ, ये तेज़ी से दौड़ना जो है ये मुतल्लिक़ फ़ेल है। मैं नहा रहा हूँ, मैं जल्दी जल्दी मतलब तेज़ी से नहा रहा हूँ, तो ये तेज़ी से जो है ये मुतल्लिक़ फ़ेल है। मैं चल रहा हूँ, मैं तेज़ी से चल रहा हूँ, ये मुतल्लिक़ फ़ेल है। तो ये मुतल्लिक़ फ़ेल जो है ये हमें काम के बारे में बताता था कि काम क्या है। मैं दौड़ रहा हूँ, मैं धीरे धीरे दौड़ रहा हूँ, मैं धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ, मैं धीरे धीरे मैं लिख रहा हूँ, मैं धीरे धीरे लिख रहा हूँ। ये धीरे धीरे, ये तेज़ी से, ये सुस्ती से, फुर्ती से, ये सब जो है ये ही मुतल्लिक़ फ़ेल है। तो मेरे ख्याल में आपको अब ये समझ में आ गया कि मुतल्लिक़ फ़ेल हम किसको कहते हैं। तो इस तरह से ये आज का जो मौजू है यहाँ पे ही मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। इसके बारे में हम कल फिर पढ़ेंगे ताकि ये आपको अच्छी तरह से जहन में आ जाए। और इसको मैं फिर कल बताऊँगा कि इसम, फ़ेल, हुर्फ़, ज़मीर, सिफ़त, मुतल्लिक़ फ़ेल, ये सब जो छः यहाँ पे किस्में हैं, ये कलमे की किस्में हैं, इनको हम कल फिर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, ताकि आपके जहन में ये अच्छी तरह से आ जाए। तो आज बस इतना ही, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।